Hello everyone and welcome to Success Station. So this is the next part of our chapter set theory, that is the part 20, and in today's class we will discuss some practical problems based on union and intersection based upon three sets. So last class में हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था बेस्ड अपॉन थ्री सेट्स. सो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दैट आर बेस्ड ऑन थ्री सेट्स. Okay, so let's start with the solution. So what is the question number 1? In a group of 50 students, the number of students studying French, English, Sanskrit were found to be as follows. French students कितने हैं? 17, English is 13, Sanskrit is 15, French and English is 9, English and Sanskrit is 4, French and Sanskrit is 5, English, French and Sanskrit is 3, means 3 subjects. Okay, 3 students ऐसे हैं जो तीनों subjects को study करते हैं, that is English, French and Sanskrit. So find the number of students who study French only, English only, Sanskrit only, French and Sanskrit but not English, French and English but not Sanskrit, at least one of the 3 languages, English and Sanskrit but not French, none of the 3 languages. Okay, so first step, let F be the set of students who study French. Okay, after that let E be the set of students who study English, let S be the set of students who study Sanskrit. Okay, understood? So this is the Venn diagram. It stands for F, this stands for E, and this third circle will stand for S, and this is the universal set. Okay, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं डिफरेंट पोर्शंस में. यहाँ पे A, B, C, D, E, F and G. So A is what? A is the number of students who study only French. Because ये देखिए A इस पोर्शन में जो भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट है ना, मैंने उनको कंसिडर किया है. इट मीन्स A is the number of students who study only French. Similarly यहाँ पे देखिए C is the number of students who study only English, and G is the number of students who study only Sanskrit. Okay, और भी बहुत सारे वेरिएबल्स हम लोगों ने सेलेक्ट किए. टोटल कितने वेरिएबल्स सेलेक्ट किए हम लोगों ने? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 वेरिएबल्स. ओके, अभी जो भी क्वेश्चंस में वैल्यूज गिवन है उन्हें हम पुट करते हैं. फ्रेंच इज इक्वल टू 17, मींस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग फ्रेंच. तब इस पूरे पोर्शन में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं? 17 स्टूडेंट्स. इट मींस A प्लस B प्लस D प्लस E इज इक्वल टू 17. A प्लस B plus D plus E is equal to 17. English is how much? English is 13 and Sanskrit is how much? Sanskrit is 15. So English means what? B plus C plus D plus F. B plus C plus D plus F is equal to 13. After that Sanskrit में कितने students हैं? 15 students. It means E plus D plus F plus G. E plus D plus F plus G is equal to 15. After that French and English is equal to 9. French ये वाला पोर्शन और ये इंग्लिश वाला पोर्शन. फ्रेंच एंड इंग्लिश मतलब कॉमन पोर्शन. ये देखिए ये फ्रेंच और इंग्लिश का कॉमन पोर्शन है, मींस B प्लस D का वैल्यू गिवन है. B प्लस D इज इक्वल टू 9. इंग्लिश एंड संस्कृत, देखिए ये आपका इंग्लिश हो गया और ये पोर्शन पूरा आपका संस्कृत हो गया. देन इंग्लिश एंड संस्कृत मतलब ये वाला पोर्शन. इट मीन D प्लस F का वैल्यू भी गिवन है. D प्लस F इज इक्वल टू 4. फ्रेंच एंड संस्कृत इज 5. फ्रेंच इज दिस सर्कल एंड संस्कृत इज दिस सर्कल. सो फ्रेंच एंड संस्कृत मतलब कॉमन पोर्शन, मीन्स ये वाला पोर्शन. देखिए इस पोर्शन में कौन सा एलिमेंट्स? E एंड D. It means E plus D is equal to 5. Okay, English, French and Sanskrit is 3. It means only 3 students are there who study all the 3 subjects. It means D का वैल्यू गिवन है. देखिए D is the common portion of the 3 sets.
सो डी का वैल्यू गिवन है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 3। सो हमें बहुत सारे वैल्यूज निकालने हैं। देखिए फर्स्ट वैल्यू क्या है, फ्रेंच ओनली। फ्रेंच ओनली मतलब दिस पोर्शन, मतलब ए का वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहले हम सारी वेरिएबल्स को लिख लेते हैं, दैट हमें फाइंड क्या करना है। सेकंड, इंग्लिश ओनली मतलब सी का वैल्यू। थर्ड क्वेश्चन, संस्कृत ओनली मतलब जी का वैल्यू। फोर्थ क्वेश्चन, इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच। देखिए ये आपका इंग्लिश वाला सर्कल और ये आपका संस्कृत वाला। तो इंग्लिश एंड संस्कृत होने चाहिए बट फ्रेंच नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये वाला पोर्शन जो है, दिस पार्ट बिलोंग्स टू द फ्रेंच पोर्शन, मतलब इंग्लिश एंड संस्कृत ओनली का ये वाला पोर्शन है, मतलब एफ फाइंड करना है हमें, एफ। ओके, एफ। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश। देखिए फ्रेंच ये वाला सर्कल एंड संस्कृत ये वाला। इंग्लिश नहीं होना चाहिए मतलब डी को इंक्लूड नहीं करेंगे। इट मींस ई का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन, फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत। ये वाला सर्कल देखिए फ्रेंच का एंड दिस सर्कल इज ऑफ इंग्लिश। फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत मतलब ये वाला पोर्शन हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इट मींस हमें बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेवेंथ क्वेश्चन, एट लीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस, मींस कम से कम एक लैंग्वेज होना चाहिए। कम से कम एक मतलब एक से ज्यादा तो हो सकता है। इट मींस हमें सारे वैल्यूज कैलकुलेट करने होंगे। ए, सी, जी। देखिए ए, सी एंड जी ओनली 1 लैंग्वेज। देखिए बी मींस 2 लैंग्वेजेस, ई अगेन 2 लैंग्वेजेस, ई, एफ अगेन 2 लैंग्वेज एंड डी 3 लैंग्वेजेस। इट मींस हमें सारे वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट करके ऐड कर देना है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ई प्लस एफ प्लस जी। दिस इज द 7th क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन क्या है, नन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस। ओके, मीन्स कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो तीनों लैंग्वेजेस में से कोई भी स्टडी नहीं करते हैं। ओके, देन सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो पहले हम फाइंड आउट कर लें दैट कितने स्टूडेंट्स इस रीजन में प्रेजेंट हैं। और ये हमें कैसे पता चलेगा, देखिए ये जो 7th क्वेश्चन है ये हमें फाइंड आउट करना है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड दीज 3 सर्कल्स। ओके, देन टोटल वैल्यू जो 50 है, 50 में से इस वैल्यू को हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे देन हमें इजीली मिल जाएगा नन ऑफ, मींस ऐसे स्टूडेंट जो तीनों लैंग्वेजेस में से कोई भी स्टडी नहीं करते हैं। ओके, तो यहां पे देखिए हमें सारे वेरिएबल्स का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। देन आइए हम कैलकुलेट करते हैं सारे वैल्यूज। देखिए d इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे देखिए e प्लस डी इज इक्वल टू 5 है। इट मीन्स यहाँ पे d का वैल्यू हम पुट करेंगे देन e का वैल्यू हमें मिल जाएगा। d इज इक्वल टू हाउ मच, d इज इक्वल टू 3, e प्लस डी इज इक्वल टू 5, e प्लस डी इज इक्वल टू 5, सो d इज इक्वल टू 3, सो e इज हाउ मच, e इज 5 माइनस 3 इज 2। 2 वैल्यूज में मिल गए d एंड e। और देखिए कौन सा वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट कर सकते, देखिए b प्लस डी इज इक्वल टू 9 गिवन है, b प्लस डी इज इक्वल टू 9। ओके, सो d का वैल्यू हमें पता है दैट इज 3, सो b इज हाउ मच, 9 माइनस 3 दैट इज 6। b का वैल्यू भी हमें मिल गया। नेक्स्ट देखिए d प्लस f इज इक्वल टू 4, d plus f is equal to 4. Okay, then we know the value of d. D is 3 plus f is equal to 4. It means f is how much? 4 minus 3 is equal to 1. Okay, understood? तो टोटल कितने वैल्यूज हमें मिल गए, 4 वैल्यूज, d, e, b एंड f। और 3 वैल्यूज बचे हैं हमें फाइंड आउट करने के लिए। देखिए e प्लस डी प्लस f प्लस g, E plus D plus F plus G is how much? E plus D plus F plus G is 15। देखिए यहां पे हमें कौन से वैल्यूज पते हैं, देखिए F का वैल्यू हमें पता है, D का वैल्यू भी हमें पता है, E का वैल्यू भी हमें पता है, देन हम G का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, सो पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। E is 2, D is how much? D is 3, F is 1 plus G is equal to 15. So G is how much? 15
माइनस इन सारे वैल्यूज को ऐड करिए, 3 + 2 5, 5 + 1 6, सो -6, इट मीन्स 9, G इज इक्वल टू 9। अभी इस इक्वेशन को देखिए, B + C + D + F, B + C + D + F इज हाउ मच, इज 13। देखिए B का वैल्यू हमें पता है 6, C इज हाउ मच, C का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया, C का वैल्यू तो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट नहीं किया है, बट D हमने निकाला है 3 और F भी हमें पता है दैट इज 1। ओके, तो यहां से देखिए एक ही वेरिएबल बचा हुआ है, देन इस वेरिएबल का वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। C इज इक्वल टू 13 माइनस 6 + 3 is 9 and 9 - 1 is 10, means C is equal to 13 - 10 is equal to 3, means C का वैल्यू भी हमें मिल गया, दैट इज 3। तो यहां पे हम क्या करते हैं ना, जो भी वैल्यूज हमने फाइंड आउट किए ना, यहां पे सारे वैल्यूज को लिख देते हैं। देखिए B का वैल्यू में पता है दैट इज 6, C इज हाउ मच 3, D इज हाउ मच, D का हमने फाइंड आउट 3, E का भी वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, E इज इक्वल टू 2, F इज हाउ मच, F इज 1 एंड G इज हाउ मच, G इज 9, मीन्स यहां पे सिर्फ एक वैल्यू बचा हुआ है जो हमें फाइंड आउट करना है, और वो कौन सा वैल्यू, वो वैल्यू A है। तो पहले से रब कर देते हैं हम लोग। तो टोटल हमें 7 वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट करना था, जिसमें हम लोगों ने 6 वेरिएबल्स के वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर लिए हैं। एक ही वेरिएबल बचा है दैट इज A। देखिए इस फर्स्ट वाले इक्वेशन को देखिए, A वेरिएबल यहां पे लेफ्ट है, A + B + D + E, A + B + D + E is 17, A + B + D + E is equal to 17। B is how much, B is 6, D is how much, D is 3, E का वैल्यू 2 is equal to 17, so A is how much, 17 minus 6 + 3 is 9 and 9 + 2 is 11, so 17 - 11 that is 6। देखिए A का वैल्यू भी हमें मिल गया, दैट इज A is equal to 6। अब इस क्वेश्चन में हमसे कोई भी क्वेश्चन या कोई भी वैल्यू पूछा जाएगा, देन वो सारे वैल्यूज का हम लोग आंसर कर सकते हैं, बिकॉज हमने वो सारे वेरिएबल्स के वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। मीन्स इस रीजन में कितने स्टूडेंट्स हैं, 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 ऑल द रीजन्स। मीन्स हम सारे क्वेश्चंस का अब आंसर बहुत ही इजिली कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। दिस वॉज वर्ड, ये आपका फ्रेंच वाला सर्कल था, दिस वॉज इंग्लिश एंड दिस वॉज संस्कृत। ओके, सो व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर स्टूडेंट्स हु स्टडी फ्रेंच ओनली, मतलब ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू में पता है, देखिए ए का वैल्यू 6, मीन्स 6 स्टूडेंट्स स्टडी फ्रेंच ओनली, स्टडी फ्रेंच ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश ओनली, सिर्फ इंग्लिश, मतलब कौन सा वैल्यू, देखिए ये C का वैल्यू, तो C का वैल्यू भी हमें पता है, दैट इज इक्वल टू 3, सो 3 स्टडी इंग्लिश ओनली। ओके, अंडरस्टूड। थर्ड क्वेश्चन, संस्कृत ओनली, मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी संस्कृत ओनली, मीन्स ये G का वैल्यू, देन G का वैल्यू देखिए हम लोगों ने फाइंड आउट किया, G इज इक्वल टू 9, मीन्स 9 स्टडी संस्कृत ओनली। फोर्थ क्वेश्चन, इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, मतलब देखिए ये वाला F का वैल्यू, और F का वैल्यू देखिए क्वेश्चन 4 में हमने लिखा भी था, सो F का वैल्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू 1, so 1 study English and Sanskrit but
not French. Okay, understood? Fifth question, French and Sanskrit but not English. देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में हमने ई का वैल्यू में फाइंड आउट करना था ना, देखिए ये वाला वैल्यू, फ्रेंच एंड संस्कृत, और इंग्लिश नॉट इंग्लिश, मतलब डी को इंक्लूड हम नहीं कर सकते, देन हमें सिर्फ ई का वैल्यू फाइंड आउट करना है. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? देखिए ई इज इक्वल टू 2. इट मीन्स टू स्टडी फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश. Understood? Sixth question, French and English but not Sanskrit. It means कौन सा वैल्यू? B का वैल्यू. देखिए ये वाला वैल्यू, French and English but not Sanskrit. सिर्फ B का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. So B का वैल्यू कितना है? 6. So 6 students study what? French and English but not Sanskrit. Okay, understood? Next question क्या था? At least one of the 3 languages, मतलब सारे वेरिएबल्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा. इस रीजन में वो स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं, इस रीजन में वो स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, इस रीजन में वो स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ संस्कृत बोलते हैं. इज व्हाट? द स्टूडेंट्स हु स्पीक फ्रेंच एंड संस्कृत एंड नॉट इंग्लिश. एफ इज व्हाट? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक इंग्लिश एंड संस्कृत एंड नॉट फ्रेंच. और बी क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत. ओके, देन सारे वैल्यूज हमें पता है ना, देन सिंपली हम क्या करेंगे? ऐड कर देते हैं. ओके, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ. ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी. A is 6, B is 6 and C is 3. 6 plus 6 plus 3. D is 3, E is 2, F is 1. 3, 2, 1, 9. 3, 2, 1 and 9. ऐड करते हैं सारे वैल्यूज को. 9 plus 1 is 10, 10 plus 2 is 12, 12 plus 3 is 15, 15 plus 3 is 18, 18 plus 6 is 24, 24 plus 6 is 30. Means 30 students can speak at least one of the 3 languages. मतलब ये जो पूरा रीजन है that is occupied by the 3 circles, इस रीजन में 30 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है. इट मीन्स इस सर्कल के बाहर जो भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगे, दो स्टूडेंट्स कैन नॉट स्पीक एनी ऑफ द 3 लैंग्वेजेस, मतलब नन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस. ओके, देन बहुत ही इजीली उसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट इज टोटल स्टूडेंट्स 50 है, 50 माइनस 30 मीन्स 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज स्टडी नहीं करते हैं. ओके, देन व्हाट यू विल राइट? दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who study none of the 3 languages is equal to 50 is the total minus 30, that is equal to 20. 20 students ऐसे हैं who cannot speak any of the 3 languages, mean none of the 3 languages. Okay, understood? So this is the end of the question number 1. Let's move towards the next question. In a town of 10,000 families, it was found that 40% families buy newspaper A, 20% families buy newspaper B, and 10% families buy newspaper C. Okay, 5% families buy A and B, 3% buy B and C, and 4% buy A and C. If 2% families buy all the 3 newspapers, then what we have to find? The number of families who buy newspaper A only, the number of families which buy none of A, B and C. Means ऐसे number of families हमें find out करना है जो
तीनों न्यूज़पेपर्स में से कोई भी बाई नहीं करता है, मींस नन ऑफ द 3 न्यूज़पेपर्स। ओके, देन यहां पे आप देखिए ये सारे वैल्यूज परसेंटेज में गिवन है ना, बट ये जो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन है ये एक नंबर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, पहले ये जो हम लोग को नंबर ऑफ फैमिलीज पूछा गया है ना, विच बाई न्यूज़पेपर ए ओनली, इसका हम पहले परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम उसका एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल लेंगे। किसके मदद से, जो 10,000 गिवन है ना, इसके हेल्प से हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट स्टेप, लेट ए बी द सेट ऑफ फैमिलीज हु बाई न्यूज़पेपर ए, let B be the set of families who buy newspaper B, and let C be the set of families who buy newspaper C. Okay, A, B and C, and this is what, this is the universal set. 40% families buy newspaper है। सबसे पहले वेरिएबल्स कंसिडर कर लेते हैं, A, B, C, D, E, F and G. Okay, 40% फैमिलीज बाई न्यूज़पेपर है, मतलब A प्लस B प्लस E प्लस D का वैल्यू गिवन है, A प्लस B प्लस E प्लस D इज इक्वल टू हाउ मच, 40%। 20% फैमिलीज बाई न्यूज़पेपर B, मतलब इस पोर्शन का वैल्यू गिवन है, इस पोर्शन में टोटल 20% फैमिलीज रहते हैं। ओके, सॉरी रहते नहीं है, 20% फैमिलीज न्यूज़पेपर बी को बाय करते हैं। बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ, बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू 20%। 10% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर सी, यहां पे देखिए इसका वैल्यू गिवन है, दैट इज ई प्लस डी, E plus D plus F plus G is equal to 10%. Okay, after that 5% families buy A and B, मतलब ये इंटरसेक्शन का वैल्यू है। A and B मतलब ये वाला कॉमन पोर्शन बिटवीन A and B, that is B plus D. B plus D is equal to 5%. 3% by B and C. B and C मतलब ये वाला कॉमन पोर्शन B और C का है, इट मीन्स D plus F का वैल्यू 3% है, एंड 4% बाई ए एंड सी। ए एंड सी के बीच कॉमन पोर्शन ये वाला है, इट मीन्स ई प्लस डी का वैल्यू कितना है, दैट इज 4%। आफ्टर दैट इफ 2% फैमिलीज बाई ऑल द 3 न्यूज़पेपर, मतलब ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज कॉमन इन ऑल द 3 सर्कल्स, सो डी का वैल्यू कितना है, दैट इज 2%। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना नंबर ऑफ फैमिलीज हु बाय न्यूज़पेपर ए, मतलब पहले ए का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, उसके बाद नंबर ऑफ फैमिलीज हु बाय नन ऑफ द न्यूज़पेपर्स ए, बी एंड सी। देन फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इस पोर्शन में जितने भी फैमिलीज रहते हैं पहले उनका नंबर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देन टोटल में से उस वैल्यू को सबट्रैक्ट कर देंगे, देन हमें इजिली पता चल जाएगा दैट विच नंबर ऑफ फैमिलीज बाय नन ऑफ द न्यूज़पेपर्स। ओके, अंडरस्टूड। सो फर्स्ट स्टेप, वी हैव टू फाइंड आउट ऑल द वेरिएबल्स। देखिए यहाँ पे D का वैल्यू हमें पता है, E प्लस डी इज इक्वल टू 4%, तो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, E प्लस डी, D इज हाउ मच, D इज 2% एंड हियर इज 4, सो E इज हाउ मच, 4 माइनस 2, 2%, सो E का वैल्यू देखिए हमें मिल गया, दैट इज 2%। आफ्टर दैट D प्लस F इज हाउ मच, 3%, एंड D का वैल्यू तो हमें पता है, दैट इज 2%, कि D प्लस F इज 3%, एंड D का वैल्यू कितना है, 2% प्लस F इज 3, सो F इज हाउ मच, 3 माइनस 2, दैट इज 1%। देखिए D का वैल्यू, E का वैल्यू एंड F का वैल्यू हमें मिल चुका है, और भी वेरिएबल्स बचे हुए हैं उनका भी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए B प्लस D इज 5%, B प्लस D इज इक्वल टू 5%। ओके, D का वैल्यू कितना है, 2% इज इक्वल टू 5, सो B इज हाउ मच, 5 माइनस 2 इज 3%। तो यहाँ पे देखिए जो भी वेरिएबल्स हमें मिल चुके हैं ना उनका वैल्यूज हम यहाँ पे लिख लेते हैं।
देखिए बी का वैल्यू कितना आया है 3%. ओके, आफ्टर दैट डी का वैल्यू भी हमें मिला है ना. डी इज हाउ मच? डी इज 2%. ई इज हाउ मच? ई इज अगेन 2%. एफ इज हाउ मच? एफ इज 1%. ओके, और भी वेरिएबल बचे हुए उनका भी वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं. यहां पे देखिए ई प्लस डी प्लस एफ प्लस जी. देखिए ई का वैल्यू हमें पता है, डी का भी वैल्यू पता है, एफ का भी पता है. मतलब इस इक्वेशन से हम लोग जी का वैल्यू निकाल सकते हैं. ई इज हाउ मच? ई इज 2%. प्लस डी इज हाउ मच? डी इज अगेन 2%. एफ इज हाउ मच? एफ इज 1%. प्लस जी इज 10%. ओके, एड करिए. 2 + 2 is 4. 4 + 1 is 5. इट मीन जी इज इक्वल टू 10 - 5, दैट इज 5%. देखिए जी का वैल्यू भी हमें मिल गया 5%. ओके, नेक्स्ट कौन सा वेरिएबल बचा हुआ है? ए एंड सी. देखिए यहां पे सी है ना, बी का वैल्यू पता है हमें, डी का भी पता है, एफ का भी पता है. इजिली हम सी का वैल्यू निकाल सकते हैं. ओके, पुट करते हैं इस इक्वेशन में. बी इज हाउ मच? 3%. सी तो हमें फाइंड आउट करना है. डी इज हाउ मच? डी इज अगेन 2%. एफ इज 1%, इज इक्वल टू 20%. So 3 + 2 is 5. 5 + 1 is 6. So C is how much? 20 - 6, that is 14%. Okay, understood? C is how much? C is 14%. C का वैल्यू भी हमें मिल गया, that is 14%. एक ही वैल्यू बचा हुआ है, that is the value of A. इस इक्वेशन को देखिए. इस इक्वेशन में टोटल 4 वेरिएबल्स हैं, ए बी ई एंड डी. बी का वैल्यू पता है, ई का भी पता है, डी का भी पता है. सारे वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पे. बी इज 3%, ई इज 2%, डी इज हाउ मच? डी इज अगेन 2%, इज इक्वल टू 40%. देन ए इज हाउ मच? 3 + 2 is 5. 5 + 2 is 7. So 40 - 7, that is equal to 33%. देखिए ए का वैल्यू हमें मिल गया, दैट इज इक्वल टू 33%. सो सारे वैल्यूज हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए ना. अभी देखिए हम अब सारे वैल्यूज को बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे. मींस जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज हु बाय न्यूज़पेपर ए. ए ओनली मींस 33%. 33% ऐसे फैमिलीज हैं जो सिर्फ न्यूज़पेपर ए को बाई करते हैं. बट ये एक परसेंटेज वैल्यू, हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ फैमिलीज मींस एग्जैक्ट वैल्यू. देन बहुत ही सिंपल है, 33% ऑफ टोटल हम अगर फाइंड आउट करेंगे देन हमें पता चल जाएगा दैट कितने फैमिलीज हैं. ओके, बिकॉज इट इज द टोटल वैल्यू. 33 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10,000, that is 3300. That is 3300 families buy newspaper A only. This is the first answer. Okay, understood? So the number of families who buy none of these newspapers A, B and C. उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होगा दैट इस पूरे रीजन में कितने परसेंटेज ऑफ फैमिलीज हैं. देन वो हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं. सिंपली हमें क्या करना है? सारे वैल्यूज को ऐड करना है. ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी. ओके, ए का वैल्यू क्या था? 33. बी इज 3, सो 33 प्लस 3 प्लस सी प्लस डी. C is 14, D is 2. 14 plus 2. E is how much? 2. F is 1. G is 5. 2, 1, 5. 2, 1, 5. 33 plus 3 is 36. 36 plus 14 is how much? 50. 50 plus 2 is 52. 52 plus 2 is 54. 54 plus 1 is 55. 55 plus 5 is 60. Means 60% of people
आर दोज हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ दीज 3 न्यूज़पेपर्स। मतलब ये आपका कौन सा न्यूज़पेपर ए वाला सेट था, न्यूज़पेपर बी एंड न्यूज़पेपर सी। मींस इस पोर्शन में टोटल 60% ऑफ फैमिलीज प्रेजेंट है। देन हम क्या करते हैं, इसका एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 60% ऑफ व्हाट, 10,000। दैट इज 60 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10,000। कैंसल, 6 1 2 3 6,000 peoples। 6,000 peoples are those who read at least one of these 3 newspaper। मतलब इस रीजन में टोटल 6,000 फैमिलीज प्रेजेंट है एंड टोटल फैमिलीज 10,000 है। इट मींस 10,000 माइनस 6,000 इज हाउ मच, 4,000। मतलब क्या, 4,000 फैमिलीज ऐसे हैं who buy none of these 3 newspapers। मतलब इस रीजन में देखिए, द रीजन दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द 3 सर्कल्स एंड इनसाइड द रेक्टेंगल, इस रीजन में टोटल कितने फैमिलीज है, 4,000 फैमिलीज। सो हमें आंसर मिल चुका है सेकेंड पार्ट का। द नंबर ऑफ फैमिलीज which buy none of A, B and C is how much, 10,000 minus 6,000, that is equal to 4,000. Okay, understood? Let's move towards the next question. In a university, out of 100 students, 15 offered maths only, 12 offered chemistry only, 8 offered physics only, 40 offered physics and mathematics, 20 offered physics and chemistry, 10 offered maths and chemistry, 65 offered physics. So find the number of students who offered maths, who offered chemistry and did not offer any of the above 3 subjects. Then यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। पहले हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे यहां पे मेंशन रहता था 15 ऑफर्ड मैथ्स, बट यहां पे 15 ऑफर्ड मैथ्स ओनली गिवन है और क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु ऑफर्ड मैथ्स। थोड़ा सा यहाँ पे अपोजिट किया गया है काम को। देन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो और आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट स्टेप, लेट एम बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स who were offered maths, let C be the set of students who were offered chemistry, and which was the third subject, physics. Then P be the set of students who offered physics. Okay, understood? So this is M, this is C, and this is P, and this is the universal set. Okay, 15 offered maths only, मतलब इस पोर्शन का बात हो रहा है, ओनली मैथ्स। देन वेरिएबल्स हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। 15 ऑफर्ड मैथ्स ओनली, मतलब ए का वैल्यू गिवन है, दैट इज इक्वल टू 15। 12 ऑफर्ड केमिस्ट्री, मतलब सी का वैल्यू गिवन है। इस वैल्यू को थोड़ा चेंज कर लिया, यहाँ पे सी 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 कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को, इसे आप जी बोल दीजिए और इस वाले को हम सी बोलते हैं। ओके, देखिए ये वाला जो सी है स्मॉल सी है और ये जो सी है दिस इज कैपिटल सी। ऐसे कुछ, चलिए ऐसे इसको लिख देते हैं हम लोग, दिस इज स्मॉल सी एंड दिस वन इज कैपिटल सी। दिस सी स्टैंड फॉर द स्टूडेंट्स हु ऑफर्ड फिजिक्स ओनली या हु वर ऑफर्ड फिजिक्स ओनली, and this C is what? This C stand for the set of students who were offered chemistry. Okay, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। चलिए दूसरा ही वेरिएबल सेलेक्ट कर लेते हैं, नहीं तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाएगा। लाइक इसको J मान लेते हैं, चलिए J। ओके, नो प्रॉब्लम, J मान लिया हम लोगों ने इसे। तो A का वैल्यू कितना है 15, 12 ऑफर्ड केमिस्ट्री, मतलब G का वैल्यू गिवन है दैट इज 12। 8 ऑफर्ड फिजिक्स, मतलब J का वैल्यू गिवन है, देखिए J is how much? J is 8. 40 offered physics and mathematics. Physics this set and mathematics this set. Means and मतलब intersection means this portion, इस portion का बात किया जा रहा है। E plus D
का वैल्यू कितना है, E प्लस डी इज 40, E प्लस डी इज 40। 20 ऑफर्ड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मतलब इस पोर्शन का बात हो रहा है, इंटरसेक्शन D प्लस F is 20, 10 offered maths and chemistry, maths this set and chemistry is this set, and मतलब intersection मतलब B plus D, B plus D is 10 and 65 offered physics, तब इस पोर्शन का बात हो रहा है। It means E plus D plus F plus J is how much, 65, E plus D plus F plus J is 65. So find the number of students who offered maths. देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑफर्ड मैथ्स मतलब इस पोर्शन में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, हमें उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। देन A प्लस B प्लस D प्लस E का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। पहले स्टेप में A प्लस B प्लस D प्लस E मीन्स इन चारों वेरिएबल्स का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना होगा, जिसमें देखिए A का वैल्यू पता है हमें, दैट इज 15, देन B, D और E का वैल्यूज कैलकुलेट करके जब हम सारे वैल्यूज को ऐड करेंगे, देन वी विल कम टू नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑफर्ड मैथ्स। सेकंड क्वेश्चन, हु ऑफर्ड केमिस्ट्री, इट मींस इस होल पोर्शन का बात हो रहा है, मतलब B प्लस G प्लस D प्लस F। थर्ड, डिड नॉट ऑफर एनी ऑफ द अबव 3 सब्जेक्ट्स, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं जो तीनों सब्जेक्ट्स में से कोई भी सब्जेक्ट उन्हें ऑफर नहीं हुआ था। ओके, अंडरस्टूड। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं दैट इस होल रीजन में, द रीजन दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द 3 सर्कल्स, इस रीजन में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद हम टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने हैं, दैट इज 100, 100 में से उस वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन हमें वो इजिली आंसर मिल जाएगा। ओके, देन सबसे पहले क्या करना है, हमें सारे वेरिएबल्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके, अभी सारे वेरिएबल्स मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए हमें ये तो फाइंड करना होगा ना दैट इस रीजन में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, उसके लिए सारे वेरिएबल्स का वैल्यू हमें पता होना चाहिए, तभी हम ना कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर ऑफर्ड एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। देन हम क्या करेंगे, ऐड करके टोटल से उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन हमें ये पता चलेगा दैट इस सर्कल के बाहर कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। ओके, इसीलिए मैंने बोला सारे वेरिएबल्स का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। देखिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहां पे A is 15, G is 12 एंड J is 8। ओके, यहां पे देखिए कोई और वैल्यूज हम लोग इसके हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। E प्लस D is 40, D प्लस F is 20, B प्लस D is 10। देखिए इस वाले इक्वेशन को देखिए, E प्लस D का वैल्यू देखिए 40 है ना, F का वैल्यू नहीं पता है, J देखिए J का वैल्यू हमें पता है, सो E प्लस D का वैल्यू पता है, J का वैल्यू भी पता है, देन हम F का वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो कैलकुलेट करते हैं हम पहले F का वैल्यू। देखिए E प्लस D इज 40 प्लस F का वैल्यू हमें नहीं पता है, बट J का वैल्यू पता है, दैट इज 8 इज इक्वल टू 65। सो F इज व्हाट, 65 माइनस 40, 40 प्लस 8 इज 48। सो F इज हाउ मच, दैट इज 17। तो देखिए F का वैल्यू हमें पता चल गया। देन यहां से देखिए D प्लस F इज 20, इट मीन्स यहां से हम फिर D का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। D प्लस F इज 20, so D F is 17, 20, so D is how much, 20 minus 17 is 3, F is 17, D is 3। ओके, देखिए टोटल हमें 7 वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसमें से 3 वेरिएबल्स का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता था, A, G एंड J, और F और D का वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया। एंड सिर्फ 2 वेरिएबल्स और बचे हुए हैं, देखिए हम उनका भी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए E प्लस D इज इक्वल टू 40, D is 3, so E is equal to what, 40 minus 3, that is 37। ओके, इट मीन सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा हुआ है जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है। तो यहां पे क्या करते हैं हम लोग, जो भी वेरिएबल्स का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, सारे वेरिएबल्स को एक जगह लिख लेते हैं, A, B,
सी डी ई, सॉरी सी तो हमने कंसिडर नहीं किया था ना, ए बी डी ई एफ जी, और एक वेरिएबल हमने जे कंसिडर किया था। ओके, देन देख लेते हैं किस वेरिएबल्स के वैल्यू में पता है। ए इज इक्वल टू 15, ए इज 15, बी इज हाउ मच, बी हमने कैलकुलेट किया है, आई थिंक वी हैव नॉट कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ बी। ओके, नेक्स्ट वैल्यू दैट इज सी, सी तो हमने कंसिडर नहीं किया था। डी देखिए कैलकुलेट किया हमने, डी इज इक्वल टू 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, ई इज 37, एफ इज हाउ मच, F is 17, 1717. G is how much? I think we have calculated the value of G. Yes, it is given. We have not calculated. It was given in the question itself. G is 12. G is 12. And the value of J was also given in the question. That is equal to 8. It means only one variable is left. That is B. देन वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए b प्लस डी इज इक्वल टू 10 है ना, b प्लस डी इज इक्वल टू 10 एंड d इज 3, सो b प्लस 3 इज इक्वल टू 10, सो b इज हाउ मच, 10 माइनस 3 इज 7, सो b इज 7. सो वी हैव कैलकुलेटेड ऑल द वैल्यूज. ओके, सो व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द नंबर स्टूडेंट्स हु ऑफर्ड मैथ्स. यहां पे हमने लिख के रखा है, मीन्स हमें a प्लस बी प्लस डी प्लस ई का वैल्यू कैलकुलेट करना है. इस पोर्शन का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है. a प्लस बी प्लस डी प्लस ई. सो a इज हाउ मच, 15, b इज 7, d इज 3, e इज 37. सो एड these values. 37 plus 3 is 40, 40 plus 7 is 47, 47 plus 15. So 47 plus 10 is 57 and 57 plus 5 is 62. So 62 students who were offered maths. Second question, find the number of students who offered chemistry. B plus G plus D plus F. B plus D plus G plus F. B plus G plus D plus F. Okay. What is the value of B? 7, D is 3, G is 12 and F is 17. 7 plus 3 is 10. 17 plus 12 is how much? 29. So 29 plus 10 is 39. So 39 is the number of students who were offered chemistry. Third question देखिए, हमें find out क्या करना है. Did not offer any of the above 3 subjects. उसके लिए सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा दैट इस पूरे पोर्शन में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं. देन वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय सिंपली एडिंग ऑल द वेरिएबल्स, दैट इज a प्लस बी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस जे. ओके, देन a इज 15, b इज 7, d इज 3, e इज 37, f is how much? f is 17, G is 12 and J is 8. Okay, let's add all these values. 15 plus 7. Okay, 15 को आप ऐसे ही रहने दीजिए. 7 plus 3 is 10. 37 plus 17 plus 12. 17 plus 10 is 27 and 27 plus 2 is 29. And 29 plus 8 is what? 29 plus 8 is 37. Add all these values. 7 plus 7 14, 14 plus 5 is 19. Carry 1. 3 plus 1 4, 4 plus 3 7, 7 plus 1 8, 8 plus 1 9. It means 99 students are present in this region. And total number of students कितने हैं? 100. It means सिर्फ one student इस सर्कल के बाहर प्रेजेंट होगा इस रीजन में. इट मीन्स ओनली वन स्टूडेंट वॉज ऑफर्ड, डिड नॉट ऑफर एनी ऑफ द अबव 3 सब्जेक्ट्स. ओके, सो वी विल राइट द आंसर दैट देयरफॉर one student
did not offer any of the above three subjects. Okay, understood? Let's move towards the next question. In a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, and 26 read newspaper S. Okay, first step क्या लिखेंगे? Let H be the set of people who read newspaper H. Let T be the number of people. Let T be the number of people, or let T be the set which will represent the number of people who read newspaper T. Okay, or let S be the set of the people who read newspaper S. Okay, this is H, this is T, this is S, and this is universal set. वेरिएबल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं A, B, C, D, E, F and G. Okay, it was found that 25 people read newspaper H. मतलब इस पोर्शन में कितने people present है उसका वैल्यू गिवन है. That is A plus B plus D plus E is how much? 25. 26 रीड न्यूज़पेपर टी, मतलब इस पोर्शन में कितने पीपल प्रेजेंट है उसका वैल्यू भी गिवन है 26. दैट इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ एंड 26 रीड न्यूज़पेपर एस. मतलब इस पोर्शन के बारे में गिवन है इस पोर्शन में कितने पीपल प्रेजेंट है. ई डी एफ जी, E, D, F and G. Okay, understood? आगे क्या गिवन है? 9 read both H and S. both मतलब इस पोर्शन का बात हो रहा है इंटरसेक्शन वाला. E plus D. E plus D is 9. After that 11 read both H and T. H and T मतलब इस पोर्शन का बात हो रहा है. B plus D. 8 read both T and S. D plus F का वैल्यू गिवन है. बहुत ही आसान है, बस इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करते जाना है. 3 read all the 3 newspapers, मतलब D का वैल्यू गिवन है. D is equal to 3. ओके, सो हमें फाइंड आउट क्या करना है वो भी हम लिख लेते हैं. देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है. Find the number of people who read at least one of the newspapers. मतलब कम से कम एक टाइप ऑफ न्यूज़पेपर्स को जो लोग पढ़ते हैं हमें उनका नंबर फाइंड आउट करना है. ओके, मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है. देखिए ए, सी एंड जी ये कौन से पीपल हैं जो सिर्फ एक टाइप ऑफ न्यूज़पेपर को रीड करते हैं. देखिए बी, एफ एंड ई, दीज आर द पीपल हु रीड 2 टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर. ओके, और ये जो D है, D इज द नंबर ऑफ पीपल हु रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर्स. इट मीन्स हमें क्या करना है, सिंपली सारे वैल्यूज को सॉल्व करके, मीन्स सारे वैल्यू वेरिएबल्स का वैल्यू कैलकुलेट करके सिंपली ऐड कर देना है. ओके, अंडरस्टूड? मीन्स A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर. मतलब ऐसे पीपल जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली 1 मतलब ए का वैल्यू, सी का वैल्यू और जी का वैल्यू, तीनों का वैल्यू कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे. देन वी विल इजिली गेट द वैल्यू ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन. ओके, दैट इज द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर. मतलब सिर्फ एक. यहां पे देखिए एटलीस्ट एंड एग्जैक्टली बहुत ही डिफरेंस है. एटलीस्ट मतलब एक या एक से ज्यादा, और एग्जैक्टली मतलब सिर्फ एक. ओके, ए प्लस सी प्लस जी का वैल्यू कैलकुलेट करना है. देन देखिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं सारे वैल्यूज को. बहुत ही सिंपल है. देखिए डी का वैल्यू गिवन है, देन यहां से डी प्लस एफ इज इक्वल टू 8. देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ फ्रॉम हियर. देखिए डी इज 3, एफ 8, देन एफ इज व्हाट, 8 minus 3 is 5.
ओके, तो दो वैल्यूज हमें मिल गए डी एंड एफ का। आगे बढ़ते हैं, देखिए ई प्लस डी इज इक्वल टू 9, देन यहां से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं ई का वैल्यू। सो ई इज हाउ मच, 9 माइनस 3 इज 6। सो ई का वैल्यू भी हमें मिल गया 6, एफ का वैल्यू पता है हमें 5 और डी का वैल्यू हमें पता था दैट इज 3। देखिए बी प्लस डी, यहां से भी एक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। बी प्लस डी इज हाउ मच, 3 इज इक्वल टू 11। इट मीन्स b इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इज 8। ओके, सो टोटल 4 वेरिएबल्स का वैल्यू हमें पता चल गया है। देन क्या करते हैं, हम उन सारे वेरिएबल्स को पहले लिख लेते हैं, मीन्स वैल्यूज को। ओके, a b c d e f एंड g। d का वैल्यू 3 है और f का वैल्यू 5 है। b is 8 and e is 6. b is 8 and e is how much, e is 6. okay, means हमें सिर्फ और 3 वेरिएबल्स का वैल्यू कैलकुलेट करना, दैट इज a, c एंड g। यहां पे देखिए e प्लस डी प्लस f, इस पोर्शन को रब कर लेते हैं। E plus D plus F plus G is how much? Is 26। देखिए E का वैल्यू पता है हमें, D का भी पता है, F का भी पता है, G का नहीं पता है, देन यहां से हम G का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो E is 6, D is how much? D is 3, F is 5 plus G is equal to 26। बहुत ही आसान। G is how much? 26 minus, add these three values, 6 plus 3 is 9, 9 plus 5 is 14. So 26 minus 14 is 12. So G का वैल्यू 12 आ गया। ओके, अभी सिर्फ और दो वेरिएबल्स बचे हुए हैं, दैट इज A एंड C। so उनका वैल्यूज भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। B plus C plus D plus F, B plus C plus D plus F। B का वैल्यू पता है, C का वैल्यू नहीं पता है, देन यहां से हम C का वैल्यू निकाल सकते हैं। इज हाउ मच? आई थिंक इट इज 26। ओके, B इज 8, C का वैल्यू नहीं पता, D इज हाउ मच? D इज 3, F इज 5, 26। So C is how much? 26 minus, add these three values, 8 plus 3 is 11 and 11 plus 5 is 16. So 26 minus 16 is 10. So C is 10. So सिर्फ एक वेरिएबल बचा हुआ है अभी, that is A. So A plus B plus D plus E is 25. A plus B plus D plus E is equal to 25. B is how much? B is 8. D is how much? D is 3 and E is how much? E is 6, 25. So A is what? 25 minus 8 plus 3 is 11 and 11 plus 6 is 17. So 25 minus 17 is how much? 8. So A का वैल्यू 8 आ गया। ओके, अंडरस्टूड। तो हमने सारे वेरिएबल्स के वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। देन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग इजिली निकाल सकते हैं और सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर इजिली निकाल सकते हैं। ओके, सो व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स। इट मींस हमें सारे वैल्यूज को ऐड करना होगा। A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E plus F plus G. So A is 8, B is 8, C is 10, D is 3, E is 6, F is 5 and G is 12. 8 plus 8 is 16, 16 plus 10 is 26, 26 plus 3 is 29, 29 plus 6 is 35, 35 plus 5 is 40, 40 plus 12 is 52. So 52 people were such who read at least one of the 3 newspapers. Okay, so this is the answer for the first question. Second question क्या है? The number of people who read exactly one newspaper. मतलब इस पोर्शन में जो भी people थे, इस पोर्शन में जो भी people थे और इस पोर्शन में जो भी people थे, तीनों को हम ऐड कर देंगे, देन सिंपली हमें मिल जाएगा आंसर।
So I think A plus C plus G. A plus C plus G. A is how much? 8. C is 10. And G is what? G is 12. So 12 plus 10 is how much? 12 plus 10 is 22. And 22 plus 8 is 30. Okay. It means 13 people are such who read exactly one newspaper. Okay. Understood? So that's the solution for the question number 4. Let's move towards the last question of today's class, that is question number 5. Of the members of 3 athletic teams in a certain school, 21 are in basketball team, 26 in hockey team, and 29 in football team. 14 play hockey and basketball, 15 play hockey and football, 12 play football and basketball, and 8 play all the 3 games. So how many members are there in all? Simply हमें क्या करना है, सारे वेरिएबल्स को यहाँ सेलेक्ट करना है, उनको ऐड करना है. ओके, देन वी विल इजीली गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. दिस इज यूनिवर्सल सेट. सो फर्स्ट स्टेप, लेट B be the set of members who belong to the basketball team. Okay, basketball. After that, let H be the set of the members who belong to hockey team. Let F be the set of members who belong to football team. Basketball, hockey and football. Okay, understood? So variables हम लोग select करते हैं A, B, C, D, E, F and G. 20 are in basketball team, मतलब इस पोर्शन में जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है उनका वैल्यू गिवन है, दैट इज A प्लस B प्लस E प्लस D इज हाउ मच? इज 21. 26 इन हॉकी टीम मीन्स इस पोर्शन में जो भी स्टूडेंट्स या जो भी आई थिंक मेंबर्स इज गिवन, स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन नहीं है. देन इस पोर्शन में जितने भी मेंबर्स हैं उनका वैल्यू कितना है? 26. इट मीन्स B प्लस C प्लस D प्लस F इज 26. 29 इन द फुटबॉल टीम, इस पोर्शन में जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है उनका वैल्यू गिवन है, दैट इज E प्लस D प्लस F प्लस G इज हाउ मच? इज 29. ओके, वैल्यूज को बहुत ही ध्यान से लिखिएगा, कहीं वैल्यूज को लिखने में कुछ गलती हो गया देन सारा मेहनत बेकार हो जाएगा आप लोगों का. 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल. हॉकी एंड बास्केटबॉल मतलब इस पोर्शन, दिस पोर्शन इंटरसेक्शन B प्लस D इज 14. 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल. हॉकी एंड फुटबॉल मतलब इस दिस पोर्शन मतलब D प्लस F. 12 प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल. फुटबॉल एंड बास्केटबॉल मतलब ये वाला पोर्शन. E प्लस D का वैल्यू गिवन है. E प्लस D इज हाउ मच? 12. एंड 8 प्ले ऑल द 3 गेम्स मतलब ये पोर्शन, बिकॉज दिस इज द कॉमन पोर्शन ऑफ ऑल द 3 सर्कल्स या ऑल द ऑफ द 3 सेट्स. मतलब D का वैल्यू गिवन है, दैट इज 8. देन हमें क्या करना है? सिंपली सारे मेंबर्स फाइंड आउट करने हैं, बिकॉज यहाँ क्वेश्चन में ही गिवन है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ऑल. मीन सिंपली फाइंड आउट all the value of the variables present here and simply add, then we will get the answer. Okay, understood? So let's solve. D is how much? D is 8. then देखिए यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, D is 8 plus F 15. the F is what? 15 minus 8, that is 7. so D is 8 and F is 7. next, E plus D is 12. so यहां से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. E plus D is 8 is equal to 12. so E is how much? 12 minus 8, that is 4. so D, F and E का वैल्यू हमें मिल गया है. एक और देखिए, B plus D is equal to 14. so B plus 8 is equal to 14. so B is how much? 14 minus 8 is 6. तो टोटल 4 वेरिएबल्स के वैल्यू हमें मिल चुके हैं. यहां से भी देखिए एक वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं. देखिए E का वैल्यू पता है हमें, D का भी वैल्यू पता है, F का वैल्यू भी हमें पता है, देन G का वैल्यू हम निकाल सकते हैं. E प्लस D प्लस F. E इज हाउ मच? 4. D इज हाउ मच?
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? 8, f is 7 प्लस g का वैल्यू हमें नहीं पता है. So g is how much? 29 minus 8 plus 4 is 12 and 12 plus 7 is 19. So g is 29 minus 19, that is 10. So g का वैल्यू भी हमें मिल गया, that is 10. ओके, तो जो भी वैल्यूज हमें पता है अभी तक उनको एक जगह लिख लेते हैं. A, B, C, D, E, F and G. D is 8 and E is 4. D is 8 and E is 4. F is 7 and B is 6. B is 6, F is 7. I think G we have also calculated, that is 10. G is 10 and A and C, these were the values that we have not calculated. So let's calculate these values also. अब इस दूसरे वाला इक्वेशन को देखिए, B plus C plus D plus F. B plus C plus D plus F is how much? 26. So B is 6, C का वैल्यू हमें नहीं पता है, D का वैल्यू 8 है, F का वैल्यू 7 है. Then C is how much? 26 minus 8 plus 7 is 15, 15 plus 6 is 21. So 26 minus 21 is 5. So C is 5. एक और वेरिएबल बचा हुआ है, that is A. अब इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखिए, A plus B plus E plus D. A plus B plus E plus D is equal to how much? 21. So B is 6, E is 4 and D is how much? D is 8, so is equal to 21. So A is 6, so A is how much? 21 minus 8 plus 4 is 12 and 12 plus 6 is 18, मतलब A का वैल्यू 3. ओके, देन हमें सारे वेरिएबल्स के वैल्यू पता है. Then we can easily calculate the answer for this question, that how many members are there in all. Simply we have to add all the values of the variables. Okay, so let's add all the values. Therefore, number of members are there in all. Yeah, you can also write total number of members are there in all is how much? Simply add all the values, A plus B plus C plus D plus E plus F plus G. Then वो हम बहुत ही easily add कर सकते हैं. A is 3, B is 6, C is 5, D is 8, E is 4, F is 7 and G is 10. So 6 plus 3 is 9, 9 plus 5 is 14, 14 plus 8 is 22, 22 plus 4 is 26, 26 plus 7 is how much? That is 33, 33 plus 10 is 43. It means 43 members are there in all. Okay, so आज के क्लास में इतना ही. So I think यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा. So मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ. So thank you very much.